this time we will reduce, we will be gaining. Then we took project of Kanban for better materials procurement and storage and movement, and to avoid the unnecessary inventory, to buy only when we want to buy rather than unplanned buying. So this analysis of existing material consumption, that is at what rate a particular material is being consumed and at what rate it is being procured. So consumption pattern and the lead time procurement, that is completed for one type of critical item. We have taken a particular critical item and we have done the project for that. And after completion, we will implement for all critical items. Identifying of runners, repeaters and stranger items means those items are regularly being used. Those items are not regularly, but they have been repeated more than once, and those items which are once in a while. For all the categories, we have completed the identification. We have done the calculation for Kanban quantity, and we have done the identification of method, how we are going to, which way of Kanban we are going to use it. Now, introduction to all other Kanban categories, that is planned in the phase 4. This is the item we have chosen, that one of the critical items. This is a hub. This is one of the critical item in the electromagnetic brake. So we took this item. So these are the raw materials for that component lying in the wooden boxes. Now we did an analysis. We have got different sizes of the brake. Size 10, we call it size 10, 12, 14, 16, 18, 20. And there are others 25, 31, 40, but there are very less in quantity. So we have combined it to others. So when we make a parallel chart, we find out the size 10 and 12 are the most prominently used. So let us concentrate on these sizes. So what studies we have done on this side. I think there should be one more. Yeah, we did a study. This is a study of what is the monthly consumption of a particular size and per week. Then we have taken half a week as a safety margin. So we took the consumption for 1.5 weeks. And then what is the procurement time? So adding to the procurement time and safety time, we find out this is the 113.75, that becomes the quantity we must stock, so that once we start a procurement action, by the time material comes, this material will be used to ensure continued production. So that is the quantity we have taken up. Then into that we added the load side of production, the 50 pieces, the load side casting, powder coated, into which we encapsulate a coil, electrical coil. This is the photographs are not distorted, but that doesn't affect the. This is the item. This is powder coated before we put the magnetic coil inside that. Now we have observed that against the requirement of minimum 60 micron coating, we are having as high as 175.4 micron coating, and on an average it was having 136.13 coating. So requirement is 60 micron. Requirement was 60 micron. We have taken 30 pieces. We checked the maximum thickness and the minimum thickness, and we draw a chart. This is for maximum. This is for minimum size. This is the minimum. Minimum coating was average is 107, maximum was 136 something. Where requirement was करना है खाली 60 माइक्रोन, लेकिन एवरेज हो रहा है 100 माइक्रोन्स. So that means lot of efforts were going waste. Lot of powder is going waste. Similarly, we took another size, that is size 14. 138.7 the maximum, 113.77 is the minimum. Almost double. So what we did, we identified the problem first. Then we thought of how to solve that. We formed a team of those people who are involved in that. Basically operators and other engineers who are not coming in this photograph, and myself. We did a brainstorming and we listed out after the brainstorming what could be the causes.
दिस मे नॉट बी द रियल कॉज बट व्हाट कैन बी द कॉजेज, वी डिस्कस इट, क्या क्या वजह हो सकती हैं. वी टुक द ओपिनियन ऑफ द ऑपरेटर, द अदर ऑपरेटर, द सुपरवाइजर, द इंजीनियर, लाइक दैट. So we listed out these 7, these are possible causes: angle of the gun, uneven contour. सब निकले, वो अपने आप में एक प्राइज है, अपने आप में एक रिवार्ड है कि हम लोग बाकी सब लोगों से थोड़ा हट कर एक टीम बना करके आगे चले हैं. हम लोग की पूरी टीम बनी है, हम लोगों ने एक टारगेट सेट किया है. टारगेट तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन हम उधर बढ़ रहे हैं, उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं. कोई थोड़ा बढ़ता है, कोई ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन आगे चल रहे हैं. एक चीज़ है, ये एक सीढ़ी की तरह से, वहाँ ऊपर टारगेट है, हम पहली सीढ़ी पे हैं, चाहे दूसरी सीढ़ी पे हैं, इमैटेरियल. चलते रहेंगे तो एक दिन टॉप पर पहुँच ही जाने का. धीरे पहुँचे, देर से पहुँचे, 10 दिन में पहुँचे, 10 साल में पहुँचे, लेकिन अगर रुकेंगे नहीं और पीछे नहीं गिरेंगे, पीछे नहीं उतरेंगे, तो ऊपर तक पहुँच ही जाएगा. कोई पहले पहुँचे, कोई बाद में पहुँचे. ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. देखिए, हम सब लोगों ने एक रास्ता पकड़ा है, वो इसके लिए मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हर एक को बेनिफिट मिलना ही है. कुछ डायरेक्ट बेनिफिट है, जैसे कुछ लोगों ने दिखाए इतने लाख का प्रॉफिट हुआ, इतना बचत हुआ, डायरेक्ट प्रॉफिट है. स्पेस की बचत हुई, अपीयरेंस में एक अच्छा देखने को लगता है, वो डायरेक्ट बेनिफिट है. इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे हैं. आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, लोगों में काम करने में थोड़ा अच्छा मन लगता है, साफ सुथरी जगह पर रहते हैं तो अच्छा लगता है. वो सब इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं. तो एक दो आदमी ने ये भी बोला था, आज नहीं दूसरी किसी मीटिंग में बोला था कि हमारी कंपनी इतनी छोटी है, उसमें ये 5 वाई उसको तो कोई रिलेवेंस नहीं है. आई डोंट रिमेंबर हु स्पोक, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबके लिए उतना ही रिलेवेंट है. कोई आज एक रूम के में भी फैक्ट्री चला रहा है, उसको नहीं लगता कितना रिलेवेंस है, लेकिन वो कल को बढ़ने वाला तो है. बाकी जो लोग बढ़ गए हैं, उन्होंने अब ये चालू किया, उसको पहले से पता लग गया कि कौन सी राह पर चलने का है. जब वो आगे बढ़ेगा, बड़ी कंपनी बनेगी, वो पहले से ही ये सिस्टम में अपने आप को डालेगा. तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए उसको बाकी लोगों से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि किसी ने 10 साल कंपनी बनाने के बाद चालू किया, कोई शुरू से इस रास्ते को पकड़ रहा है. तो ये उतना ही रिलेवेंट है छोटी कंपनी के लिए या बड़ी कंपनी के लिए, किसी के लिए. इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है. मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए बराबर रिलेवेंट है. उल्टे जो स्टार्टिंग से चालू करेगा, लॉन्ग रन में जाके उसको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है. एक और इस चीज़ का बेनिफिट ये है कि हम लोग की एक टीम बन गई है, तो हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं. जैसे अभी 10 चीज़ें बताई, हम क्या कर रहे हैं, कई चीज़ें मेरे को पता लगी, कई चीज़ें आपको पता लगी, नई चीज़ें. तो एक नॉलेज शेयरिंग होता है, ये अपने आप में बहुत अच्छा फ़ायदा है. तो मेरे को तो ये लगता है कि ये एक तरीके से बेनिफिट, चाहे कितना हो, छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये हम लोगों को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और हमको इसको सीरियसली आगे चलना ही चाहिए. और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत आसान है. एक ठान लेने की ज़रूरत है बस कि हमको करने का है. वेरी गुड सर, थैंक यू. तो मिस्टर जडेरी या इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आदमी ये सोचते हैं मेरे को कभी मौका नहीं मिला काम करने का, आज उनके पास वो मौका है. वो कंपनी में अपनी जगह बनाएंगे और ढूंढते थे जगह की मैनेजमेंट क्या बोलेगा कि अब आज आपके ऊपर सब कुछ है, आप बोलो मेरे को ये करना है, दे विल सपोर्ट. जैसे बड़ा काइजन, एक वर्कर से नीचे लोअर लेवल से टॉप लेवल था, टॉप लेवल को काम चाहिए, लोअर लेवल बोले मैं कैसे काम करूँ, प्रॉब्लम उसको है काम करने की, तो ही कैन गिव अ बेटर आइडिया. वो आपको आइडिया दे सकता है कि मेरे को क्या करना है, और उसको आज रोकने, लेकिन जरूरत है उसको केवल मोटिवेशन की. आप हम जिस जगह पे बैठे हैं वो उनको मोटिवेट करेंगे तो शायद वो आपको अच्छे से अच्छा आइडिया देगा. रूट लेवल पे अगर आप जाएंगे वहीं से आपको कुछ निकलेगा, बीच में आएंगे तो शायद आपको टाइम लगेगा.
लेकिन उस जगह पे अगर आप सीधा जाकर तो लेकिन उससे इंटरेक्ट आपको खुद करना पड़ेगा। आप चाहें कि वो आएगा आपके पास और वो आपको देगा कि काइजन, ये सपोज कोई भी एक इम्प्रूवमेंट का या कोई ऐसा आइडिया जिससे कि हम सेविंग कर सकें, या कोई नया प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट कर सकता है वो वर्क, उसको एक उस लेवल पे मत समझो, उसको ये समझना है कि हमको इससे एक प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा गेन हो सकता है उस इंसान से। मेरा तो केवल यही कहना है कि जितना नीचे लेवल से आपको इंफॉर्मेशन, जितने आइडियाज, जितने चीजें काम करने के मौके वो वहां से मिलेंगे और कहीं से इतना नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम कंपनी प्रॉब्लम फेस करती है, लेकिन वो प्रॉब्लम का रूट कहाँ पर है वो चीज जल्दी से नहीं ढूंढ पाती, वो ढूंढने की हमको जरूरत है। अगर वो चीज हमने ढूंढ ली तो आप अर्श तक पहुंचेंगे।